ਹੈਲੋ एंड वेलकम टू रेस अकैडमी ऑफिशियल। सत श्री अकाल साਰਿਆਂ ਨੂੰ नमस्ते दा मेरा नाम है फनकार ਤੇ रेस अकैडमी ऑफिशियल ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜਨਰਲ ਸਾਇੰਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਐ ਮੰਨਦੇ ਆ ਵੀ ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਯਾਰ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਕਰਨੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਆ बहुत ज़्यादा रिपीट होने वाले क्वेश्चन पाए आ, मोस्ट रिपीटेड एंड वधिया तरीके नाल तुहानूं मैं दस के जाऊँगा, करा के जाऊँगा ताकि पेपर दे विच जेकर आ जे फस जे अपनी किस्मत नूं। एंड मैनूं लगदा जनरल साइंस का दूसरा लैक्चर इस तो पहले भी मैं जनरल साइंस के क्वेश्चन पाए सीगे, जेकर वो नहीं देखे तो देख लेना। बाकी प्लेलिस्ट दे विच जाके रिवीजन लैक्चर वो सारे देखने जरूरी है, क्योंकि मेरा मनना है कि हर एक लैक्चर के कुछ ना कुछ मैं वखरा पाने की कोशिश की है। राइट, सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप रिवाइज करते रेस अकैडमी ते तुहाडा स्वागत है। सो ज़्यादा गल्लां बातां ना करते हुए आपां सीधा करते हैं शुरुआत। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, वधिया क्वेश्चन जिहड़े कि किसी ना किसी एग्जाम दे विच पक्का आए हुए ने। जिवें हैगा जी कहंदा मनुखी शरीर विच कहंदा किहड़े गदूद नूं आदम दा सेब कहा जाता, यानी किहड़ी ग्लैंड है जिहड़ी ह्यूमन बॉडी दे विच जिहनूं एडम्स एप्पल कहा जाता। हुण एडम एप्पल पहली गल तां हुंदा की है, तुसीं आम तौर ते देखिया होऊगा कईयां दे गले दे विच जिहड़ी आह गुठली जी हुंदी है बाहर नूं निकली हुंदी है, है ना, दींदी हुंदी है, तो उही बेसिकली एडम एप्पल हुंदा सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ। ਜਿਹਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਈਜ਼ ਉਹਦਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਯਾਨੀ ਉਹਦੀ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕਿਨ ਪਤਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਬਾਹਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਸ਼ੋ ਹੁੰਦਾਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਡਮਸ ਐਪਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਰਾਈਟ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਆਪਣੀ ਥਾਇਰਾਇਡ ਗਲੈਂਡ ਹੈ ਨਾ, ਗਲੇ ਦੀ ਥਾਇਰਾਇਡ ਗਲੈਂਡ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ ਉਹ ਆ ਜਾਊਗਾ ਥਾਇਰਾਇਡ ਗਲੈਂਡ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਰਾਈਟ ਹੈ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਲੈਰਨਿਕਸ। ਰਾਈਟ, ਸੋ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਜੇਕਰ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਹੁੰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ। ਰਾਈਟ ਹੈ, ਲੈਰਨਿਕਸ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਕ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲਦੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਊਂਡ ਬਾਕਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਊਂਡ ਬਾਕਸ। ਰਾਈਟ, ਸੋ ਇਹ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ। ਐਂਡ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਥਾਇਰਾਇਡ ਗਲੈਂਡ। ਓਕੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਓਰੀਜ਼ਾ ਸਟੀਵਾ, ਹੈ ਨਾ, ਸਟੀਵਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਸਟੀਵਾ ਕਹਿ ਲਓ। ਰਾਈਟ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸ ਦਾ ਬੋਟੈਨੀਕਲ ਨੇਮ ਹੈ? ਵੀਟ ਆ, ਰਾਈਸ ਆ, ਮੈਂਗੋ ਆ, ਗ੍ਰੇਪਸ ਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੈਕਚਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਜੀਕੇ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ। ਰਾਈਟ, ਸੋ ਓਰੀਜ਼ਾ ਸਟੀਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਭਾਈ ਬੋਟੈਨੀਕਲ ਨੇਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਰਾਈਸ ਦਾ। ਰਾਈਟ, ਰਾਈਸ ਦਾ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਨੇਮ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਯਾਦ ਕਰਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵੀਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਟ੍ਰਿਟੀਕਮ, ਟ੍ਰਿਟੀਕਮ। ਇਹ ਵੀਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਐਂਡ ਰਾਈਸ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਓਰੀਜ਼ਾ ਸਟੀਵਾ। ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਗੋ ਹੈ, ਮੈਂਗੋ ਦਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਰਾਈਟ, ਮੈਗਨੀਫੇਰਾ ਇੰਡੀਕਾ, ਮੈਗਨੀਫੇਰਾ ਇੰਡੀਕਾ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਗੋ ਦਾ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਐਂਡ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰੇਪਸ ਦਾ ਆ ਗਿਆ। ਗ੍ਰੇਪਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਹੁੰਦਾਗਾ ਵਿਟਿਸ ਵਿਨੀਫੇਰਾ, ਵਿਟਿਸ ਵਿਨੀਫੇਰਾ। ਰਾਈਟ, ਸੋ याद रख लो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जिन्हें भी बोटैनिकल नेम है, साइंटिफिक नेम है, सारे याद करने हैं। ਵੀਟ, ਰਾਈਸ, ਮੈਂਗੋ, ਗ੍ਰੇਪਸ। ਓਕੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਜਾਨਵਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਭਾਰ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਯਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਨ, ਯਾਨੀ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਧੇਰੇ ਭਾਰ ਉਹ ਕਿਸ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ? ਬੋਨ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ, ਟਿਸ਼ੂ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਹੇਅਰ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਾਟਰ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਨਵਰ ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੀ ਜਾਨਵਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਨੀਮਲ ਹੀ ਕਿੰਗਡਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣੇ ਆ, ਤਾਂ 75% ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਯਾਨੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹੀ ਭਾਰ ਹੈ। ਰਾਈਟ, 75% ਪਾਣੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾਟਰ ਕੰਟੈਂਟ ਆ ਉਸੇ ਦਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਭਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਰਾਈਟ, ਸੋ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ ਉਹ ਡੀ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਓਕੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੌਖਾ। ਇੱਕ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸੋਮੈਟੋਟ੍ਰੋਪਿਕ ਹਾਰਮੋਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਡੈਸ਼ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਸੋਮੈਟੋਟ੍ਰੋਪਿਕ ਹਾਰਮੋਨ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾਗਾ? ਰਾਈਟ, ਗਰੋਥ ਕਾਹਦੀ ਕਰਦਾਗਾ? ਬੋਨਸ ਦੀ ਗਰੋਥ ਕਰਦਾ, ਮਸਲਸ ਦੀ ਗਰੋਥ ਕਰਦਾ, ਹੇਅਰ ਦੀ ਗਰੋਥ ਕਰਦਾ, ਜਾਂ ਕਨੈਕਟਿਵ ਟਿਸ਼ੂ ਦੀ ਗਰੋਥ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸੋਮੈਟੋਟ੍ਰੋਪਿਕ ਹਾਰਮੋਨ ਹੁੰਦਾਗਾ ਇਹ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਹਾਰਮੋਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਗਰੋਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ, ਹਾਰਮੋਨਲ ਗਰੋਥ ਯਾਨੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾਗਾ। ਐਂਡ ਇਹ ਬੋਨਸ, ਓਬਵੀਅਸ ਗੱਲ ਆ, ਗਰੋਥ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਆਪਣੀ ਬੋਨਸ ਹੀ ਵਧਦੇ ਆ। ਰਾਈਟ, ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਬੋਨਸ ਦੀ ਗਰੋਥ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਾਫੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੁੰਦਾ। ਰਾਈਟ, ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਮਾ ਯਾਨੀ ਸੁਮੋ ਪਹਿਲਵਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਰਾਈਟ, ਸੁਮੋ ਪਹਿਲਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦੇ, ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੋਮਾਟ੍ਰੋਪਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹਾਰਮੋਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਹੁੰਦਾਗਾ। ਰਾਈਟ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਕਲਦਾ ਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰੋਥ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਪਹਿਲਵਾਨ ਬਣ ਗਏ, ਬੜੇ ਹੱਟੇ ਕੱਟੇ ਬਣ ਗਏ। ਰਾਈਟ, ਐਂਡ ਇਹ ਹਾਰਮੋਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਿਹੜੀ ਗਲੈਂਡ ਕਰਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪਿਚੂਟਰੀ ਗਲੈਂਡ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਾਸਟਰ ਗਲੈਂਡ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਮਾਸਟਰ ਗਲੈਂਡ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਗਰੋਥ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੋਨਸ ਦਾ ਗਰੋਥ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ, ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਾਸਟਰ ਗਲੈਂਡ ਨਾ ਕਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ? ਰਾਈਟ, ਸੋ ਮਾਸਟਰ ਗਲੈਂਡ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਚੂਟਰੀ ਗਲੈਂਡ, ਪਿਚੂਟਰੀ, ਪਿਚੂਟਰੀ, पिट्यूटरी ग्लैंड।
ਰਾਈਟ। ਸੋ ਮਾਸਟਰ ਗਲੈਂਡ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਪਿਚੂਟਰੀ ਗਲੈਂਡ ਕਿੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਆਬਵੀਅਸ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹਾਰਮੋਨ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਹਨਾ ਸੋਮੋ ਪਹਿਲਵਾਨ ਵਾਲਾ ਸੋਮਾਟੋਟ੍ਰੋਪਿਕ, तो यह जो हार्मोन है बेसिकली बोन्स की ग्रोथ वास्ते काम आता है। अगला करिए, चलो अगला अगला कहता जी विच एंजाइम इज प्रेजेंट इन बाइल जूस। कहता पित्त के रस में किहड़ा एंजाइम होंदा है। हुण जिहड़ा अपना बेसिकली जिवें हुण मैं इहदा चलो आंसर जिहड़ा हैगा वो नन ऑफ दीज है, क्योंकि कोई भी एंजाइम होंदा ही नहीं। राइट, जिहड़ा बाइल जूस बेसिकली सीक्रेट करदा यह लिवर करदा, यानी लिवर अपना बाइल जूस बनाउंदा है। राइट, तो इहदा काम है जिहड़ा फैटी एसिड्स हुंदे आ, यानी अपने फैट हुंदी है बेसिकली है ना, ਉਹਨੂੰ छोटे छोटे ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਈਜੈਸਟ ਹੋ ਸਕੇ। ਰਾਈਟ, ਤਾਂ ਬਾਈਲ ਜੂਸ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਈਲ ਜੂਸ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਉਹ ਲਿਵਰ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਈਲ ਜੂਸ ਜਾ ਕੇ ਸਟੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਬਾਈਲ ਜੂਸ ਕਿੱਥੇ ਸਟੋਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗਾਲ ਬਲੈਡਰ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗਾਲ ਬਲੈਡਰ। ਤਾਂ ਲਿਵਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਈਲ ਜੂਸ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਕਰਦਾ। राइट, तो स्टोर कितने होंदा है गाल ब्लैडर दे विच जाके स्टोर हो जाता। कोई भी एंजाइम जिहड़ा हैगा भाई इहदे विच मौजूद नहीं होंदा, यानी इहदा जिहड़ा आ जाऊगा जी नन ऑफ दीज आंसर आ जाऊगा। राइट, सो इहदा काम जिहड़ी बेसिकली की हुंदागा वो काम हुंदागा जिहड़ी फैट हुंदी है बेसिकली उसनूं तोड़ना। राइट, एक पैनक्रियाटिक जूस भी हुंदागा, पैनक्रियाटिक जूस, पैनक्रियाटिक जूस इहदे नाल ही वो प्रोड्यूस हुंदागा पैनक्रियाटिक जूस। राइट, पर इसनूं एक एंजाइम आ जिहड़ा कि एक एंजाइम है जिहड़ा इसनूं डाइजैसट करदा है, उस एंजाइम का नाम हैगा लाइपेस, उस एंजाइम का नाम हैगा लाइपेस। सो आ क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता, जे मान लो इत्थे आ जाए कि विच एंजाइम इज प्रेजेंट इन द पैनक्रियाटिक जूस, फिर आप लाइपेस आंसर लावांगे। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पेपर दे विच पूछा गया, पैनक्रियाटिक जूस। बट बाइल जूस की जेकर गल करिए तो लिवर प्रोड्यूस करता, स्टोर गल ब्लैडर दे विच जाके हो गया, एंजाइम नहीं हैगा, ये फैट नूं बेसिकली ब्रेक करने दे विच हेल्प करता। राइट, सो जिवें आप मान लो ये उवें मशीन मनो भी एक ऐसी मशीन है जिवें आप मान लो कोई बहुत सॉलिड चीज़ नूं है ना आप कट्टते हैं, जिवें मान लो बहुत वड्डा पत्थर है आपां नूं कट्टना है। राइट, बहुत वड्डा पत्थर का मतलब बहुत सॉलिड चीज़ तुसीं कोई खाधी है तो उहदे ते पानी पाई जाने, लिक्विड पाई जाने, एक जूस जा पाई जाने ताकि वो है ना नरम हो जाए, है ना नरम हो जाए, तो इस करके उसनूं कट्टना सौखा हो जाए। आप करते हैं ना इस तरीके दे नाल, उही प्रैक्टिकल चीज़ है। इस तो बाद आ गया जी कहता एप्पल का बोटैनिकल नेम की है, जिवें मैं तुहानूं दस्सिया सी कि बोटैनिकल नेम हर इंपॉर्टेंट फ्रूट, हर इंपॉर्टेंट क्रॉप का जिहड़ा बोटैनिकल नेम है जरूरी है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो एप्पल का जिहड़ा हैगा जी वो हैगा पायरस मैलस। राइट, क्योंकि एप्पल दे विच मैलिक एसिड हुंदा ना, मैलिक एसिड ये उत्थों ही बनिया मैलस। ठीक है, ये भी बहुत बार पूछा जाता भी किहड़ा एसिड हुंदागा, पायरस मैलस। राइट, सो इहदा जिहड़ा आंसर आ जाऊगा जी ए आ जाऊगा। एंड एक बनाना का जरूर याद कर लो, बनाना का जिहड़ा साइंटिफिक नेम हुंदा वो मूसा, मूसे पिंड तो याद रख सकते हो। राइट, मूसा पैराडीसिकम। राइट, हो सकता मैं प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा जिहा रॉन्ग बोल रहा हूँ, प्रोनाउंसिएशन ते ना जाओ। राइट, नाम याद रखने की कोशिश करो, मूसा पैराडीसी। राइट, सो बनाना का हो गया एंड पायरस मैलस जिहड़ा हो गया भाई वो एप्पल का हो गया, सो याद रख लियो। इस तो बाद आ गया जी कहना इन्हां विचों किहड़ा जानवर चमड़ी राही कहना साह लैंदा है ना, यानी विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स ब्रीथ थ्रू द स्किन, चमड़ी राही साह लैंदा, यानी फिश है, पिजन है, फ्रॉग है, कॉकरोच है। सो फ्रॉग है क्योंकि फ्रॉग हैगा एम्फीबियन। एम्फीबियन का मतलब की है कि जिहड़ा लैंड ते भी रवे, यानी धरती ते भी ते पानी ते भी रवे। एम्फीबियन की जिहड़ी स्टडी हुंदी उहनूं आपां हैरपेटोलॉजी कहने आ, ये बहुत बार पूछा जाता है, हैरपेटोलॉजी, हैरपेटोलॉजी। राइट, सो लैंड वाटर दोनों दे रहने वाला फ्रॉग जिहड़ा हैगा भाई वो अपनी स्किन के थ्रू भी यानी साह जिहड़ा हैगा वो लै सकदा गा, फ्रॉग तो अलावा जिन्ने भी एम्फीबियन है। राइट, स्किन तो लेंदे आ ज़्यादातर। एंड अर्थवॉर्म भी उहदे विच आ जांदा है। अर्थवॉर्म्स आ जिहड़े जेकर पुछ लिया जाए कि जिहड़े गंडोए आ अर्थवॉर्म्स आ जिहड़े वो कित्थों साह लेंदे, तो वो भी स्किन दे राही ही साह लेंदे आ। अगला कहंदा जी क्लोरोफिल, बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पेपरों के विच आउंदा है। क्लोरोफिल विच कहंदा इन्हां विचों किहड़ा एक हुंदा है जो पौधे दे पत्तियां नूं हरा कर दिंदा है, बहुत बार आउंदा है, बड़े बारी आउंदा क्वेश्चन है। राइट, सो क्लोरोफिल विच यानी आपां क्लोरोफिल करके कहने हैं कि पौधा जिहड़ा हरा है ना बेसिकली, तो क्लोरोफिल विच ऐसा की प्रेजेंट हुंदा जिहड़ा उसनूं ग्रीन कलर कर दिंदा। राइट, सो क्लोरोफिल विच जिहड़ा हुंदा जी वो हुंदा मैग्नीशियम, वो हुंदा मैग्नीशियम, Mg मैग्नीशियम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो क्लोरोफिल दे विच मैग्नीशियम प्रेजेंट होता जिहदे करके पौधा हरा आपां नूं दिखाई दिंदा है। इस तो बाद आ गया जी कहना मलेरिया पैदा करने वाले कीटाणुओं की खोज किसने की थी, यानी हू डिस्कवर्ड मलेरिया काजिंग जर्म्स। राइट, सो बेसिकली मलेरिया नूं पैदा करने वाले जिहड़े कीटाणु आ भाई 1907 दे विच
ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਹਦੀ ਖੋਜ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਭਾਈ? ਚਾਰਲਸ ਲੂਇਸ ਐਲਫੋਂਸੋ ਲੈਵਨਨ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਨਾਮ ਵੱਡਾ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਸੋ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 1907 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਭਾਈ ਉਹ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਭਾਈ ਵੀ ਆਹ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੂੰ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਕਦੋਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਸਟੈਟਿਕ ਜੀ ਕੀ ਪੁੱਛਣੀ ਹੈ, ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ 1907 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਲਿਖ ਲਓ, ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਨਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਭਾਈ, ਚਾਰਲਸ ਲੂਇਸ ਐਲਫੋਂਸੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਿਹੜੇ ਅੰਗ ਵਿੱਚ ਉਂਗਲਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਉਛਾੜਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਲੀ, ਇੱਕ ਵਚਨ ਵਿਲਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸਟਰਕਚਰ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਉਂਗਲਾਂ, ਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਵਿੱਚ ਆ ਇਹ ਵੀ ਐਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ। ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਖਾਣੇ ਪੀਂਦੇ ਆ ਹਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਯਾਨੀ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਥਾਂ ਤੇ ਲਿਜਾਣਾ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਨੂੰ ਵਿਲੀ ਵਿਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਵਿਲੀ ਵਿਲੀ, ਵਿਲੀ ਵਿਲੀ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਵਿਲੀ ਵਿਲੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਫਿੰਗਰ ਲਾਈਕ ਸਟਰਕਚਰ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਉਂਗਲਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਉਂਗਲਾਂ ਜਿਵੇਂ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਰਗਨ ਹੈ ਹੈਜ਼ ਫਿੰਗਰ ਲਾਈਕ ਜਿਹੜੀ ਆਊਟਗਰੋਥ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਵਿਲੀ ਵਿਲੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਆਰਗਨ ਹੈ? ਲਾਰਜ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ ਹੈ, ਸਮਾਲ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ ਹੈ, ਪੈਨਕ੍ਰੀਆਸ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਟੋਮੈਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ ਉਹ ਸਮਾਲ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ ਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਯਾਨੀ ਸਬਸਟੈਂਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਰੇਨ ਵਾਟਰ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਕੀ ਹੈ ਭਾਈ? ਸੋ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਸਟੋਰੇਜ ਆਫ ਦਾ ਯੂਜ਼ਡ ਵਾਟਰ, ਨਾ ਯੂਜ਼ਡ ਵਾਟਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਮੀਂਹ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ, ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਸਟੋਰੇਜ ਆਫ ਰੇਨ ਵਾਟਰ। ਸੌਖਾ ਨਾ ਕੁਐਸਚਨ। ਸੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸੌਖੇ ਸੌਖੇ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਕੀਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਦੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਮਨੁੱਖੀ ਗੁਰਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪੱਥਰੀਆਂ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਯਾਨੀ ਮਨੁੱਖੀ ਗੁਰਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪੱਥਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਕਾਮਨ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਜਨਰਲ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੈਗੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਤਾਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਦਾ ਸਟੋਨਸ ਕਹਿੰਦਾ ਫਾਰਮਡ ਇਨ ਦਾ ਹਿਊਮਨ ਕਿਡਨੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆਰ ਆਫਨ ਮੇਡ, ਕਾਹਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਆਕਜ਼ਲੇਟ ਹੈ, ਸੋਡੀਅਮ ਐਸੀਟੇਟ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਸਲਫੇਟ ਹੈ, ਜਾਂ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਸਲਫੇਟ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ ਉਹ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਆਕਜ਼ਲੇਟ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਕਿਡਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੱਥਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਆਕਜ਼ਲੇਟ ਦੀ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪੱਥਰੀ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪੱਥਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਸ ਸਟੋਨ ਨੂੰ, ਕਿਡਨੀ ਸਟੋਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਨੈਫਰੋ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਡਨੀ, ਇਹ ਨੈਫਰੋ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਟੋਨ ਹੁੰਦਾ ਪੱਥਰ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਲਿਥੋਸਫੀਅਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਧਰਤੀ ਲਿਥੋਸਫੀਅਰ ਸਟੋਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਪੱਥਰ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਨੈਫਰੋਲਿਥੀਐਸਿਸ, ਲਿਥੀਐਸਿਸ, ਨੈਫਰੋਲਿਥੀਐਸਿਸ, ਨੈਫਰੋ ਕਿਡਨੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਲਿਥੀਐਸਿਸ ਸਟੋਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਲਿਥੋਸਫੀਅਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਧਰਤੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਨੈਫਰੋਲਿਥੀਐਸਿਸ। ਸੋ ਇਹ ਨਾਮ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਆਕਜ਼ਲੇਟ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਭਾਈ ਕਿਡਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਟੋਨ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਓਕੇ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਈ। ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿਨੈਪਸ ਗੈਪ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸਾਈਨੈਪਸ ਗੈਪ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਨਿਊਰੋਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਮੰਨ ਲਓ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਇਹ ਨਿਊਰੋਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਨਰਵ ਸਿਸਟਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਿਕਲੀ, ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਾਂ ਗੈਪ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਨੈਪਸ ਜਿਹੜਾ ਗੈਪ ਆ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ? ਦੋ ਨਿਊਰੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਟੂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਨਿਊਰੋਨਸ, ਟੂ ਨਿਊਰੋਨਸ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਭਾਈ? ਸੋ ਇਹ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਆ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬੀਜਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਇਹ ਹਨ, ਯਾਨੀ ਦਾ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਫॉर ਜਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸੀਡਸ ਆਰ, ਵੀ ਹੁਣ ਬੀਜ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜ ਪੁੰਗਰਦੀ ਆ, ਰਾਈਟ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ? ਆਬਵੀਅਸ ਗੱਲ, ਹਵਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਕਸੀਜਨ ਵਗੈਰਾ, ਵਿੰਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਾਟਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੀਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ, ਯਾਨੀ ਆਲ ਆਫ ਦੀਜ਼ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਸੌਖੇ ਆ ਨਾ ਕੁਐਸਚਨਸ, ਬਟ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਮਿਲਣਗੇ ਆਬਵੀਅਸ ਗੱਲ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਫੁੱਲ ਦਾ ਨਰ ਭਾਗ ਹੁੰਦਾ, ਰਾਈਟ, ਯਾਨੀ ਆਬਵੀਅਸ ਗੱਲ ਆ ਫੁੱਲ ਵੀ ਮੇਲ ਫੀਮੇਲ ਆਪਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਆ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਫੁੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਲ ਵਾਲਾ ਭਾਗ ਹੁੰਦਾ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੇਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਐਂਡਰੋ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਫੀਮੇਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮੂਹਰੇ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਗਾਇਨੋ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗਾਇਨੋ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗਾਇਨਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾਗਾ, ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਬਵੀਅਸ ਗੱਲ ਆ ਫੀਮੇਲ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਐਂਡਰੋ ਹੋ ਗਏ ਬੰਦੇ ਯਾਨੀ ਮੇਲ, ਤਾਂ ਐਂਡਰੋਈਸੀਅਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਭਾਈ ਉਹ ਨਰ ਭਾਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਫੀਮੇਲ ਭਾਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਗਾਇਨੋਈਸੀਅਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓ ਐਂਡਰੋ।
इस तो बाद आ गया जी कहना इन्हां विचों किहड़े बल्लभ विच भूमिगत तणाव जिहड़ा बनदा है यानी जिहड़ी अंडरग्राउंड स्टैम है बल्लभ बनदा है बल्लभ। हुण देखो ये क्वेश्चन बहुत बार आउंदे ते बहुत बार कन्फ्यूजन रह जाती है तो हुण मैं सारे तुहानूं दस्सण लग्या इत्थे। तो एक तो आपां गल करदे हुंदे जी मोडिफाइड स्टैम दी। मोडिफाइड स्टैम की हो गया भला जिवें तुहाडा पोटैटो है ना मोडिफाइड स्टैम हो गया। इस तरीके दे नाल मोडिफाइड स्टैम तुहाडा ऊनियन भी है पर इहदी फॉर्म जिहड़ी हुंदी है बल्लभ हुंदी है राइट। यानी उसनूं आपां बल्लभ कहने यानी मोडिफाइड स्टैम जरूर है बट बल्लभ की फॉर्म दे विच हो गया एंड उसनूं आपां जिहड़ी उहदी एग्जाम्पल है यानी वो ऊनियन हो गया। यानी पोटैटो एंड ऊनियन दोनों ही मोडिफाइड स्टैम है बट जिहड़ा भाई यह ऊनियन है वो बल्लभ यानी कि साइंटिफिक नेम दे विच आपां बल्लभ कहने राइट। सो इस करके पूछा गया कि इन्हां विचों किहड़े बल्लभ भूमिगत तना बनता यानी कि तो यदा जो आंसर आ जाएगा जी वो ओनियन आ जाएगा राइट। सो याद रखियो। एक शकरकंद भी होंगी है ना शकरकंद नूं आपां की कहने स्वीट पोटैटो शकरकंद ये हुण मोडिफाइड स्टैम है या की है ये मोडिफाइड रूट है। सो याद रखियो ठीक है ना मोडिफाइड ये रूट है ये मोडिफाइड रूट है। होर जिवें कैरेट होगी है ना गाजर तो ये भी मोडिफाइड बेसिकली रूट्स है राइट। ओके सो शकरकंद कई बार स्वीट पोटैटो पेपर के आ जाए ना तो आप कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो स्वीट पोटैटो शकरकंद यानी कि जी हैगी मोडिफाइड रूट है बट मोडिफाइड स्टैम है जेडे पोटैटो मोडिफाइड स्टैम हो गया बट बल्लभ की फॉर्म के आप ओनियन कहांगे जिथे बल्लभ ना होंदा फिर पोटैटो आंसर आ सकता सी। इन्हां विचों कहंदा किहड़ी गैस प्लास्टिक के निर्माण विच वरती जाती है विच ऑफ द फॉलोइंग गैसिज इज यूज्ड कहंदा मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्लास्टिक मीथेन है हीलियम है इथाइलिन है ब्यूटेन है। सो भाई यदा जो आंसर आ जाऊगा जी वह आ जाऊगा इथाइलिन है ना इथाइलिन C2H2 होंगे ना शायद हाँ इथाइलिन एवें जी करके बनता मेरे हिसाब के राइट। चलो खैर तो इथाइलिन जोड़ा है भाई वो प्लास्टिक बनाने के काम आता। सो आम जिंदगी के क्वेश्चन है सो याद रख लेना। इस तो बाद आ गया क्वेश्चन कहता जी ओजोन कहता ऑक्सीजन तो उपरले वायुमंडल में इन्हां विचों किस दी क्रिया नाल बनती है। हुण ओजोन तुहानूं पता बेसिकली ऑक्सीजन होंदी है ऑक्सीजन कंबाइन होंदी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन करके राइट। तो 3O2 होंदा जिहड़ा कि O2O3 दे विच बदल जांदा यानी O3 दे विच बदल जांदा राइट। O3 नूं आपां की कहने ओजोन लेयर राइट। सो एक काहदे करके बनती है भाई ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन करके बनती है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन यानी कि इसका C आंसर बनता है। ओके हो गया भाई सो याद रख लो। अगला कहता जी हाइड्रोजन आयन संघनता दे नकारात्मक लॉगरिथम मुल नूं कहता की कहा जाता है यानी यह बेसिकली नैगेटिव लॉगरिथम वैल्यू ऑफ हाइड्रोजन पूछा। हम पावर ऑफ हाइड्रोजन होंगे जिन्होंने आप इस तरीके डिनोट करते हैं राइट नैगेटिव लॉगरिथम वैल्यू ऑफ हाइड्रोजन क्योंकि हाइड्रोजन का जोड़ा एस वैसे पॉजिटिव आयन होंगे पर जो आप लॉगरिथम वैल्यू हाइड्रोजन की पावर ऑफ हाइड्रोजन करते हैं बेसिकली वो नैगेटिव करूँगा। तो पीएच कहते हैं पीएच की वैल्यू होंगी है कि पावर ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन भी कह सकते हो पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन एक किसी भी जी चीज़ का बेसिकली वो एसिडिक बेसिक न्यूट्रल वैल्यू दस देगा यानी पीएच स्केल है जोड़ा 0 तो लैके 14 तक होंगे 7 वैल्यू न्यूट्रल की होगी 7 तो घट है जोड़ा जिन्ना घट हो जाऊ उन्ना एसिडिक हो जाऊ तो जिन्ना वध हो जाऊ उन्ना तुहाडा यह बेसिक होंदा जाऊगा। जिवें पुछ लेंदे ना कि अल्कोहल की है मिल्क की है ग्रेप की है तो अलग अलग आप कहने भी आह एसिडिटी ज़्यादा है यह न्यूट्रल है जिवें पानी आम तौर पर आप कहने भी यह न्यूट्रल है 7 वैल्यू है ना। सो उस तरीके दे नाल एसिडिक जिन्ना घट होगा उन्ना ज़्यादा एसिडिक होगा तो जिन्ना वध बेसिक होगा उन्ना ज़्यादा ही वो यानी एसिडिक घट होगा तो बेसिक वध होगा इस तरीके दे नाल कह सकते हो राइट। सो जी कि यदा जो आंसर आ गया एक पीएच स्केल इहनूं कहंदे आ आ जिहड़ा मैं दस्सियागा 0 तो लैके 14 तक वैल्यू इसनूं पीएच स्केल कहते हैं जिहदी फाउंडेशन की सी भाई सोरेनसन ने। सो यह याद रख लो कि पीएच स्केल का इन्वेंटर कौन है यानी इन्वेंटर कह लो डिस्कवरी यानी कि बनायागा सोरेनसन ने राइट। सो सोरेनसन सो याद रख लो काफ़ी इंपोर्टेंट है। इस तो बाद आ गया जी कहता भारी पानी है ना दी खोज किसनूं यानी हैवी वाटर जिहड़ा हुंदा भाई वो भी खोज किहने कीती है भाई इहदी तो बेसिकली यह ड्यूट्रीयम हुंदा जिवें आपां H2O कहने पानी अपना H2O तो जो ऑक्सीजन के नाल करदागा तो यह H2O2 बन जाता राइट। ड्यूट्रीयम कहने इहनूं आपां बेसिकली हैवी वाटर राइट जो न्यूक्लियर रिएक्टर वगैरह वो कूलेंट का भी काम करदागा। चलो खैर तो यह डिस्कवरी किहने कीती है बनाया किहने तो यदा जो आंसर आ जाऊगा जी पहला HC उरे एंड EW वॉशबर्न राइट। सो आ HC उरे आ जो बेसिकली कई बार ऑप्शन के कला पिया होंगे पर जो वॉशबर्न भी आ गया तो यह भी आंसर ला दो
HC उरे, राइट। सो HC उरे एंड EW वॉशबर्न, वॉशबर्न पानी वॉश है ना, याद रख सकते उरे। सो जिहड़ा बेसिकली HC उरे है, इसनूं नोबल प्राइज़ भी मिलिया सी भाई इस ते ही कि इसने इस दी डिस्कवरी की है। कदों मिलिया सी 1934 दे विच। सो याद रख लिओ 1934 दे विच HC उरे नूं बेसिकली नोबल प्राइज़ मिलिया सी। इस तो बाद आ गया कहता इन्हां विचों किहड़ा, कहता एक समुद्री पानी दे डिसैलीनेशन विच शामिल है। डिसैलीनेशन का मतलब की है डिसैलीनेशन, सैलीनेशन मतलब साल्ट, यानी साल्ट नूं रिमूव करना। समुद्री पानी दे विचों साल्ट नूं रिमूव करने के प्रोसैस नूं आपां की कहांगे, रिवर्स ऑसमोसिस। आरओ पानी अपने घरे भी लगे होंदे आ, तां जिहड़े भी ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ कह लो भी ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ प्रॉपर्टीज़ आ ਜਿਹੜੀਆਂ उस पानी ਦੀਆਂ, यानी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ। ਤਾਂ ਰਿਵਰਸ ਆਸਮੋਸਿਸ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਮਕ ਕੱਢਣਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਰਿਵਰਸ ਆਸਮੋਸਿਸ ਹੀ ਕਹਾਂਗੇ। ਅਗਲਾ ਆ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਰੇਟ ਆਫ ਡਿਫਿਊਜ਼ਨ ਆਫ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਇਜ਼ ਅਬਾਊਟ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੀਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਤੇ ਬਸ ਜਸਟ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਜਾ ਵੜੋ, ਕਿਸਮਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਡਿਫਿਊਜ਼ਨ ਆਫ ਹਾਈਡਰੋਜਨ यानी हाइड्रोजन के फैलण की दारा जी किन्नी होंदी है, तो हीलियम के नाल कंपैरिजन किया होया। एक न्यूमेरिकल फिजिक्स या सॉरी केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ जाते हैं, राइट। बट उही गल है भी क्वेश्चन रिपीट होंदा गा, तो आप सीधा याद कर लो कि जी हाइड्रोजन के फैलण की जी दर होंदी है बेसिकली 1.4 गुणा होंदी है हीलियम तो, है ना, 1.4 टाइम्स दैट ऑफ हीलियम। ओके हो गया, बस 1.5 गुणा याद रखो लगभग। ऑक्साइड कहता परत के बन के कारण कहता किहड़ी धात नूं जंगाल नहीं लगता, राइट। सो बेसिकली ऑब्वियस गल है, करोजन तुसीं पढ़िया होगा आम तौर पर भी करोजन होंदी है, जिंक नूं भी लग जाता, लोहे नूं भी लग जाती जंग, है ना। सो एलूमीनीयम जदों हवा दे नाल जाए कह लो भी ऑक्सीजन के नाल जिहड़ा हैगा भाई वो करदा गा रिएक्शन करदा गा, तो एलूमीनीयम ऑक्साइड बना दिंदा है, राइट। एलूमीनीयम ऑक्साइड बनाता, यानी ये उत्ते एक परत बन जाती है, यानी ऐ मान लो भी एलूमीनीयम की एक तार है, जदों ये ऑक्सीजन वाली हवा के नाल रिएक्ट करूगा तो एक ये ऑटोमैटिकली परत बन जाती, जिहदे करके भाई ये जंग हो लगन तो यानी ये बच जाता है। एलूमीनीयम इज द राइट आंसर। अगला कहता दुध के pH की प्रकृति कहता की है। दुध एसिडिक है, स्लाइटली एसिडिक है, स्लाइटली बेसिक है, हाईली एसिडिक है। जो तो हाईली एसिडिक होंगे तो आप पीण योग अपने नहीं है। दुध आप पी लेने यानी यह लगभग न्यूट्रल के नेड़े है, पर स्लाइटली एसिडिक है, ये स्लाइटली एसिडिक है, ठीक है ना। सो pH वैल्यू दी हैगी है 6.7 तो लैके 6.9 तक, तो 7 तो घट होगी, 7 तो घट का मतलब एसिडिक है। सो याद रखना कि मिल्क आ जिहड़ा स्लाइटली एसिडिक। अगला आ गया कहता जी इन्हां विचों कहता किहड़ी जिहड़ी हैगी इमल्शन की उदाहरण नहीं है। सो इमल्शन हुंदा गा दो ऐसे लिक्विडां नूं मिलाउणा जिहड़े कि आपस दे विच मिल नहीं सकते, जिवें चॉकलेट मिल्क हो गया, बटर हो गया, विप्ड क्रीम हो गई। सो इन्हां नूं मिलाया जांदा एक प्रोसैस राहीं, बट वो नहीं मिल सकते। बट जिहड़ा इमल्शन है इन्हां दे विचों किहड़ा नहीं हैगा, फिर ऑब्वियस गल है दही। तो दही तो एक प्रोसैस है, फर्मेंटेशन है, दुध आप काढ़ के सॉरी दुध गर्म करके कोसा पा के एक जाग वगैरह लाना जिहड़ा है ना। सो कर्ड इज द राइट आंसर, राइट हो गया। इस तो बाद आ गया जी परमाणुओं के विचकार कहता इलैक्ट्रॉन जोड़ियां विचकार भाईवाली द्वारा बनाए गए बंधनां नूं की कहा जाता। तुसीं आम तौर पर +1 +2 या 10वीं 9वीं 10वीं दे विच भी पढ़ाया जाता। बॉन्ड होंदे आयनिक बॉन्ड होंदे, कोवलेंट बॉन्ड होंदे, कोआर्डीनेट बॉन्ड होंदे, है ना, शेयरिंग करते। यानी मान लो जे आपां दो एलीमेंट्स की गल कर ली तो एक दूसरे के नाल कंपाउंड बनाउंदे, अपना कंपाउंड बनाउण वास्ते उन्हां नूं एक दूसरे के नाल मिलण वास्ते बॉन्ड करने पैंदे आ, ते वो बॉन्ड अलग अलग तरीके के होंदे। कोई आयन शेयर करदा, कोई कोवलेंट यानी एक दूसरे के बराबर बराबर कर लेंदा। सो आपां नूं इत्थे पुछिया की आ कि जिहड़ी इलैक्ट्रॉनिक कपल बनदा गा, यानी इहनूं इलैक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड भी कहा जाता है। तो दोने जो भाईवाली का मतलब क्या कि दोने अपने अपने बराबर बराबर शेयर करते हैं, तो उन्होंने आप कहने जी कोवलेंट बॉन्ड, उन्होंने आप कहने कोवलेंट बॉन्ड, यानी आंसर बी आ गया, ठीक है। अगला कहता जी नोबल गैसां बारे किहड़ी गल सही नहीं है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। दे आर नॉन मैटैलिक इन नेचर, राइट है। दे एग्जिस्ट इन एटॉमिक फॉर्म, राइट है। दे आर रेडियो एक्टिव इन नेचर, ये थोड़ा जिहा गलत है, यानी यही अपना आंसर है। एंड जीनॉन इज द मोस्ट रिएक्टिव अमंग देम, ये ठीक है जी, राइट। यानी बेसिकली असल दे विच नोबल गैस की होंदी है जिहड़ी बहुत ज़्यादा शांत रहे, बहुत ज़्यादा नोबल होंदी है, यानी नॉन रिएक्टिव होंदी है, सिर्फ जीनॉन नूं छड्ड के। जीनॉन थोड़ी जी रिएक्टिव होंदी है, तो जो थोड़ी जी हालांकि जीनॉन भी नॉन रिएक्टिव ही है, पर जेकर आप देखिए भी आ भी शांता मुंडा, आ भी शांता मुंडा, आ भी शांता मुंडा,
ये भी शांत है पर थोड़ा जा बाकियों नालों थोड़ा जिहा रिएक्टिव है ना। तो शांत तो जीनॉन भी है, बाकी नोबल गैसिस के कंपैरेटिव थोड़ा जिहा रिएक्टिव है। यानी कि आप जी कल्ली नोबल गैसिस की गल करिए तो नोबल गैसां दे विचों सब तो ज़्यादा रिएक्टिव जेकर आप कहांगे तो जीनॉन है, पर जेकर आप असली रिएक्शन वाले बंदे देखिए तो उन्होंने सामने जीनॉन कुछ भी नहीं। इस करके आप नोबल गैस नूं नॉन रिएक्टिव एलीमेंट्स या गैस कहने। राइट हो गया। सो एक तो यानी आह चीज़ स्टेटमेंट सही होगी, दे आर रेडियो एक्टिव इन नेचर, यानी इन्हों की अपनी कोई कलर अपना ऑर्डर कुछ नहीं होंदा। राइट। सो ये रेडियो एक्टिव इन नेचर नहीं होंदा, पर ये भी एक एक्सैप्शन है जी कि हैगी रेडॉन। रेडॉन ही एक एक्सैप्शन है जिहदे रेडियो एक्टिविटी थोड़ी बहुत आपां देखने को मिल जाती है। राइट। यानी कहने का मतलब एक एक्सैप्शन है, इस करके जेकर एक्सैप्शन है तो फिर पूरी की पूरी स्टेटमेंट सही नहीं हो सकती। तो इस करके यही स्टेटमेंट गलत है क्योंकि आपको नॉट पूछे। राइट। दे आर ये तो सारिया दी सारिया रेडियो एक्टिव होंदियां, फिर तो आंसर सही सी। दे आर रेडियो एक्टिव नेचर, हालांकि तो रेडियो एक्टिव नहीं होंदियां, ऑर्डरलैस होंदियां, कलरलैस होंदियां, पर रेडॉन ही एक ऐसा एलीमेंट है, इसकी गैस है जिहड़ी माड़ी मोटी तुहानूं रेडियो एक्टिविटी, इस करके दा नाम ही रेडॉन है, यानी रेडियो एक्टिविटी। राइट। सो रेडॉन हो गया एक्सैप्शन रेडियो एक्टिविटी दे विच, एंड जीनॉन हो गया रिएक्टिविटी दे विच। हुंदे ये सारे नॉन रिएक्टिव है, बट जीनॉन थोड़ा जिहा रिएक्टिव है। हुंदे ये सारे नॉन रेडियो एक्टिव नेचर है, बट थोड़ी जी रेडियो एक्टिविटी रेडॉन दा। ठीक है। सो बाकी जी नोबल गैसिस है वो 6 है भाई, वो सारे के सारे याद करके जानी है। एक तो तुहाडा रेडॉन ही हो गया, राइट, आर्गन हो गया, जीनॉन हो गया, क्रिप्टॉन हो गया, हीलियम हो गया, एंड नियॉन हो गया। सो याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार इतों क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। ओके हो गया भाई। अगला आप क्वेश्चन करिए तो कहता 1984 के बहुत बार आता यार ये क्वेश्चन, क्या बात है। चलो खैर, तो कहता भोपाल गैस ट्रैजेडी 1984 के जी हुई सी भाई, उत्थे किहड़ी गैस लीक हुई सी। जेकर ये क्वेश्चन नहीं आता तो यह मतलब तुहाडी बहुत घट तैयारी है, जाए कह लो भी माड़ी किस्मत है कि तुसीं इस क्वेश्चन को किसी पेपर के देखा नहीं। राइट। यानी तुहाडे प्रीवियस ईयर ते कमांड थोड़ी जी घट हो सकती है, पर आना चाहिए। 3 दिसंबर 1984 एक ऐसा ईवेंट होया सी भोपाल दे विच, मध्य प्रदेश के जिथे एक गैस लीक हुई सी जिहदा नाम है जी मिथाइल आइसोसायानेट। राइट। सो इस गैस लीकेज के काफ़ी जणों की मौत हुई सी। सो याद रख लो भाई CH3NCO मिथाइल आ मिथाइल है भाई आइसोसायानेट। राइट। सो याद रख सकते 1984 की ट्रैजेडी। राइट हो गया। अगला निंबू का कहता, निंबू नूं कहंदे एक किस्म के फल वजों श्रेणीबद्ध किया गया है। राइट है। मुख्य तौर पर कहता क्योंकि इस विच बीज होंदे हन। सो निंबू का जो फल है कहता इसका एक किस चीज़ का अमीर स्रोत है, तो केड़ा बेसिकली निंबू के विच एसिड होंदा गा। राइट। टार्ट्रिक एसिड है, मैलिक एसिड है, सिट्रिक एसिड है, एसिटिक एसिड है। सो ये सिट्रिक एसिड सब तो ज़्यादा होंदा। ईवन कि जिन्ने भी सिट्रस फ्रूट है सारे नालों ज़्यादा जो सिट्रस एसिड होंदा गा, जिमें मैंगो आप संतरे की गल करते हैं ना, मैंगो कह गया मैं, है ना, ऑरेंज, है ना, किनू वगैरह हो गया, तो सारे सिट्रस फ्रूट है। यानी सिट्रस फ्रूट के विचों सब तो वड्डा राजा जिहदे सिट्रिक एसिड भरपूर है वो निंबू ही है। राइट। सो सिट्रिक एसिड यानी कि आंसर आ जाऊगा। जेकर टार्ट्रिक एसिड की गल करिए, आ भी बहुत बार पूछा जाता। टार्ट्रिक एसिड जो होंदा भाई वो ग्रेप्स के विच होंदा गा। टार्ट्रिक एसिड है जो ग्रेप्स के विच होंदा गा। एंड मैलिक एसिड तुहानूं मैं दस्सिया सीगा जिहड़ा आपां पढ़िया सी जदों एप्पल का बोटैनिकल नेम। राइट। सो उस टाइम ही दस्सिया सीगा मैलिक एसिड है जो भाई ये एप्पल दे विच हुंदा, सेब दे विच हुंदा गा। एंड एसिटिक एसिड तो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हुंदा। इहनूं थोड़ा जा फरमेंटेशन यानी इहदी करके विनेगर तुसीं पढ़दे होंगे भाई, एक विनेगर हुंदा, विनेगर दे विच एसिटिक एसिड हुंदा। राइट। एक विनेगर करके वो भी पींदे भी अजकल ना डाइजैसट करने वास्ते चीज़ां, विनेगर जूस भी आउंदा एक। सो एसिटिक एसिड विनेगर हो गया, टार्ट्रिक हो गया ग्रेप्स भाई, मैलिक हो गया एप्पल, तो सिट्रस फ्रूट है जो तुहाडा लैमन राजा। ठीक है भाई, उस सारी चीज़ां नोट कर लो। ओके। चलो अगला आ गया, कहता इन्हां विचों कहता किहड़ी चीज़ की वरतों कच बनाउण लई नहीं की जाती। हुण देखो कच नूं बहुत कूल करके बनाया जाता, ठंडा किस नूं कीता जाता। यह भाई देखो पहली गल तो आंसर देख लो कि यदा आंसर जो आ जाऊगा जी वह आ जाऊगा आह, क्योंकि कैलोरीन नहीं होंदा इस। राइट। सो 75% तो तुसीं आए मनो भी जो कच बनाने वास्ते आपां नूं चाहिदा वो सिलिकॉन डाइऑक्साइड चाहिदी है, यानी आह कच बनाने वास्ते सिलिकॉन डाइऑक्साइड चाहिदी है। फिर ये नाल भाई सोडियम ऑक्साइड है जिहड़ा, सोडियम ऑक्साइड रिएक्शन करता तो फिर सोडियम कार्बोनेट बनता Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट बनता। राइट। एंड कैल्शियम ऑक्साइड तो आपको चाहिए ही चाहिए, कैल्शियम ऑक्साइड। राइट। सो यानी कि सिलिकॉन ऑक्साइड हो गया,
सोडियम ऑक्साइड हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, तिन्ने मिल के एक कच बनाते हैं, गिलास बनाते हैं। Na2CO3 बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, कई बार पूछ लिया जाता भी इन्हों के विचों किहदे करके गैस गिलास बनती है, गिलास बनता कच बनता, तो Na2CO3 होंगे सोडियम कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रख लियो। इस तो बाद आ गया भाई, सो मैं पासे फिर तां ही हुन्ना स्क्रीन शॉट ले लिया करो। ओके, चलो खैर, कहता जी ग्रीन हाउस गैस जो वायुमंडल में सब तो वध मात्रा में मौजूद होंगी है। ऑब्वियस गल है, ग्रीन हाउस गैस कार्बन डाइऑक्साइड के रिलेटेड है, तो कार्बन डाइऑक्साइड सब तो ज़्यादा होंगे, यानी कि CO2। राइट, सो ग्रीन हाउस गैस ओके हो गया। अगला आ गया सूरज तो कहता चंद्रमा तक जिहड़ा कहता ताप ऊर्जा का तबादला वो इस द्वारा होंदा, यानी सूरज तो ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी फ्रॉम द सन टू द मून। आप कहने हैं कि जो ऑब्वियस गल है जो चंद आ हुण जो मून है वो सैटेलाइट है। राइट, बेसिकली वो स्टार तो है नहीं, सॉरी प्लैनेट तो है नहीं। राइट, यानी कहने का मतलब वो कोई अपनी रोशनी नहीं हैगी। सन जिवें स्टार है, सन एक स्टार ही है। स्टार किहड़ा हुंदा जिहदी अपनी रेडिएशन होंदी, अपनी की कहते होंगे अपनी रोशनी होंदी है। राइट, जिहड़ा आप रोशनी छड्डदा। सो चंद की कोई रोशनी तो नहीं होंदी, तो सूरज तो जिहड़ा चंद तक रोशनी पहुँचती है हीट एनर्जी, एंड वो किस फॉर्म के पहुँचती है भाई, वो रेडिएशन फॉर्म के ही पहुँचती है, यानी इसका आंसर आ जाऊगा ए। ठीक हो गया, ओके। इस तो बाद आ गया रेडिएशन फॉर्म का मतलब क्या कि कोई मीडियम नहीं होंदा विच डायरैक्टली। चलो खैर तो छड्डो। दो शरीरों के विचकार कहते गुरुत्वाकर्षण का बल निर्भर नहीं करता, यानी द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन टू बॉडीज डज नॉट डिपेंड ऑन। ये क्वेश्चन कराने का मंतव उही जिवें आप पहला एक क्वेश्चन किया सीगा कि जिहड़ा हाइड्रोजन फैलन का जिहड़ा उहदा यानी जिहड़ा हाइड्रोजन फैलदी है डिफ्यूज होंदी है, तो 1.4 गुणा होंदी है हीलियम के फैलन तो। राइट, सो उस तरीके का यह क्वेश्चन भी इहनूं तुसीं फार्मूला बेस्ड, क्योंकि पेपर के विच आया होया इस करके मैं करा रहा कि हो सकता पेपर के विच टक्कर जे। सो जिहड़ा फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन होंदी है, उहदा फार्मूला तुसीं आम तौर पर जे पढ़िया होवे तो Gm1m2/r² हुंदा है। राइट, यानी कहने का मतलब जिहड़ी मासिस की प्रोडक्ट होंदी है, देखो दीयर सैपरेशन का मतलब की है कि एक दूसरे तो जिहड़ी दूरी है उन्होंने दो बॉडीज की। राइट, सैपरेशन होगी, सही है। द प्रोडक्ट ऑफ दीयर मासिस हो गया, M1 M2 यानी प्रोडक्ट होगी। द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हो गया, आ जी है जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हो गया। द सम ऑफ दीयर मासिस नहीं, सम ऑफ दीयर मासिस नहीं होंदा, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द यानी जिहड़ा होंदा। राइट, सो यानी सम ऑफ द मासिस नहीं आऊगा, यानी इसका आंसर जिहड़ा आ जाऊगा जी वो सी आ जाऊगा। राइट, सो याद रख लो, तुहानूं फार्मूला तो ही मैं थोड़ा जिहा समझा रहा हाँ कि याद रखने का तरीका की है कि सम ऑफ दीयर मासिस नहीं होंदा, इनडायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ दीयर मासिस होंदा बेसिकली। राइट, सो ये याद रख सकते हो भाई, इंपॉर्टेंट है। ਇਹੋ ਜਿਹੇ क्वेश्चन हूबहू आ सकते पेपर के जस्ट इस करके भी देख जो, बस किस्मत हुई तो अपनी आ जाऊगा। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ एक गेंद ਨੂੰ आह क्वेश्चन पता नहीं कितने बारी रिपीट ਹੁੰਦਾ, बहुत बार ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ एक गेंद ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਖੜਵੇਂ रूप ਵਿੱਚ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਦੀ ਗਤੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸੇਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। यानी एक गेंद ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਆਹ गेंद ਆ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਸਿੱਟਿਆ ਤੇ ਐਸੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਆ ਗਈ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸੇਮ ਹੀ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। देखो बहुत सिंपल गल है, जी काइनेटिक एनर्जी होंगी है, काइनेटिक एनर्जी में फोर्सफुली एनर्जी लवाई। राइट, आह काइनेटिक एनर्जी देखो, तो बेसिकली जो मैं एनर्जी लाई तो ये काइनेटिक एनर्जी है जी भाई वो तां लै गई इनू है ना। हुण ज्यों ज्यों यह तां जाई जाती है, एक पोटेंशियल एनर्जी होंगी है। पोटेंशियल का मतलब ये कितनी पोटेंशियल है कि यह कितनी पोटेंशियल रखता है, ये कितनी एनर्जी है, इस तरीके नाल याद कर लो। तो बेसिकली जिवें मान लो मैं आए सिटिया तो ज्यों ज्यों यह उपर नूं जाई जांदा, ज्यों ज्यों उपर नूं जाई जांदा, तो बेसिकली ये काइनेटिक एनर्जी है जी। क्योंकि जो मैं एनर्जी दी तो शुरुआत के पूरी एनर्जी है। जो मान लो आप एक गेंद मारते जो शुरुआती वाली होंगी है पूरी तेज भजती है, तो काइनेटिक एनर्जी सब तो ज़्यादा कदों होंगी है जो आपको जस्ट ऐ क्लिक करते हैं। तो जो मैं जस्ट ऐ क्लिक किया तो काइनेटिक एनर्जी बेसिकली ये जी हैगी है वो तां चली गई। राइट, यानी कहने का मतलब ज्यों ज्यों तां चली जाऊ काइनेटिक एनर्जी की घटती जाऊ। ऑब्वियस गल तां ही तो मुड़ जाता है, जो काइनेटिक एनर्जी ही इन्नी हो तो मुड़े ही ना। राइट, तो काइनेटिक एनर्जी ज्यों ज्यों तां जाई जाती है, काइनेटिक एनर्जी की जीरो होती जाती है, एंड पोटेंशियल एनर्जी है जी वो वधदी जाती है। राइट, एक चीज़ ध्यान देना, जिवें मान लो मैं की कहा कि भाई कोई चीज़ सिटी है तो काइनेटिक एनर्जी है जी वो घटती जाऊगी, तो पोटेंशियल एनर्जी है जी वो वधदी जाऊगी। पर जदों यह ताहां तो एवें करके ये मुड़िया है ना, ताहां तो जो मुड़िया इत्थे है, हुण इत्थों नहीं मुड़ना, तो इत्थे पोटेंशियल एनर्जी यदी मैक्सीमम है, इत्थे पोटेंशियल एनर्जी यदी मैक्सीमम है। तो मैक्सीमम होगी, काइनेटिक एनर्जी की होगी जीरो होगी, काइनेटिक एनर्जी की होगी जीरो होगी, तो फिर थल्ले नूं आऊगा। फिर थल्ले हुण ऑब्वियस गल है ग्रेविटेशन है, तो थल्ले नूं जो आऊगा तो फिर इसकी काइनेटिक एनर्जी है जी वो हाईएस्ट पहुँच जाती। काइनेटिक एनर्जी यानी वधी जाऊगी,
फिर पोटेंशियल एनर्जी है जी वो घटती जाती है ना। पोटेंशियल एनर्जी फिर इतने आके जीरो हो जाती है ना। सो बेसिकली ओवरऑल तुम की देख रहे हो कि जाते हुए जी एनर्जी, यानी मान लो इतने मैं उही वैल्यू ले लेना है ना, कि मान लो इतने वैल्यू 10 सी, 10 की स्पीड नाल किनेटिक एनर्जी उपर जाके जीरो होगी, तो इतने पोटेंशियल एनर्जी 10 होगी, तो फिर इतने आके किनेटिक एनर्जी जीरो होगी, तो फिर पोटेंशियल एनर्जी इतने आके जीरो हो जूगी, तो किनेटिक एनर्जी फिर 10 होगी, राइट। यानी ओवरऑल की है कि जेकर 10 तो जीरो पहला इधर होया तो फिर जीरो तो 10 इधर हो गया, यानी एनर्जी की होगी टोटल एनर्जी ये की हुई कॉन्सटेंट रही, सेम रही, यानी जिहड़ी एनर्जी लगती है उस एनर्जी नाल आ गया, यानी कहने का मतलब की है कि एनर्जी ऑलवेज सेम, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, पढ़िया होगा, राइट। सो इसका जो आंसर आ गया जी वो ए आंसर आ जाएगा। समझ लगी पे, सो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सो ये याद रख लेना, राइट है। चलो एक्सेलरेशन भी कह सकते हो किसी तरीके दे नाल, पर फिर भी एक्सेलरेशन डिपेंड करती है, क्योंकि एक्सेलरेशन वेलोसिटी के नाल मिल जाती है ना, तो एक्सेलरेशन थोड़ी बहुत चेंज हो जाती है, पर जो एनर्जी ऑप्शन के ना होंदा तो किते ना किते एक्सेलरेशन कह सकते सी, क्योंकि एक्सेलरेशन जी आने वाले उसकी स्पीड है वो कॉन्सटेंट ही रहेगी, ऑब्वियस गल है, ग्रेविटेशनल फोर्स होंदा ना, चलो खैर ग्रेविटी है, बट आंसर इज द एनर्जी, ओके हो गया। अगला आ गया भाई, कहता क्वेश्चन घैंट है, वर्खा के पानी में कहता घुलनशील इन्हां विचों किहड़ी गैस तेजाबी बना दिंदी है, बहुत ज़्यादा आउंदा कि एसिडिक रेन बहुत बार पेपरों के आउंदा, तो भाई किहड़ी हुंदी है भाई SO2 ते NO, सो याद रखना है सल्फर डाइऑक्साइड ते नाइट्रस ऑक्साइड, इत्थे ऑप्शन च नाइट्रस ऑक्साइड है नहीं गा, कई बार सल्फर डाइऑक्साइड ते NO कट्ठा ही लिखा होंदा है, यानी नाइट्रस ऑक्साइड, तो एसिड रेन वास्ते इंपॉर्टेंट है काफ़ी। इस तो बाद आ गया जी सार्स की है, तो हम सार्स बेसिकली किहड़ा डिजीज़ है, स्किन डिजीज़ आ, वायरल डिजीज़ आ, बैक्टीरियल डिजीज़ आ, या फिर आई डिजीज़ है ना। तो हम सारस तुसी आम तौर पर जो आप कोविड होया सीगा तो तुसी सार्स कोविड नाम का एक वर्ड सुनिया होगा, सार्स कोविड, ये बेसिकली सार्स है कि निमोनिया है ना, निमोनिया हो जाता अपन, राइट। सो वायरल डिजीज़ आ बेसिकली एक सार्स, जिन्हों आप कहने भाई सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, यानी साह आने के अपन प्रॉब्लम होती है, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, राइट। सो सार्स कोविड क्योंकि यह निमोनिया का एडवांस वर्जन मन्या गया कोविड नूं, हुंदा तो उही कुछ सीगा ना, साह वगैरह औख हुंदी सी, तो सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिस्टम इसकी फुल फॉर्म होगी, सो एक तरह का वायरल डिजीज़ है, ऑब्वियस गल कोविड भी वायरल डिजीज़ सीगा, सो आंसर जो आ गया जी बी आंसर आ गया। इस तो बाद आ गया जी कहता किहड़ा एंजाइम मनुखी हंझुआं विच हुंदा, किहड़े बैक्टीरिया की मौत हुंदी है, किहड़े बैक्टीरिया की नहीं, इत्थे पंजाबी ट्रांसलेट गलत होगी, ये ऐ कहना चाहुंदा गा, कहता भाई जिहड़ा किहड़ा एंजाइम कहता मनुखी हंझुआं च हुंदा जिहड़ा बैक्टीरिया नूं मार दिंदा है। हुण जिवें बहुत सिंपल जी गल है, मान लो तुहाडे अख दे विच मच्छर वड़ गया, राइट आ, तो नाल दी नाल अखां दे विचों पानी निकल आंदा, तो उस मच्छर करके जे कोई बीमारी अंदर गई आ कोई है ना, तो वह बैक्टीरिया यानी कि जो कोई अंदर गया तो उस बैक्टीरिया नूं मार दिंदे, इस करके अखां चों पानी निकल आंदा, भी यानी कि जिहड़ी चीज़ अंदर गई आ वो नाल दी नाल बैक्टीरिया जिहड़ा नाल दी नाल बाहर निकलो, यानी वो बैक्टीरिया नूं मार दिंदी है, इस करके अखां चों पानी निकल आउंदा, राइट। असी यानी कि वह किहड़ा एंजाइम हुंदा, वो एंजाइम हुंदा जी लाइसोजाइम, सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है लाइसोजाइम, है ना। लाइसोजाइम नूं इसे करके कहा जाता सोल्जर ऑफ द बॉडी भी कहा जाता, चलो खैर लाइसोजाइम है, तो वो लिम्फोसाइट होंगे है ना, चलो लाइसोजाइम है, सो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यानी यह जो भी पसीना निकलूगा, स्वैटिंग होंगी है, पसीना निकलता तो वह भी उही चीज़ है जी, जो टीयर्स तुम कदे टेस्ट करके देखो थोड़ा नमक वाला लगूगा ना, सलाइन जहा लगता, तो वह बेसिकली लाइसोजाइम करके होंदा कि वह एंजाइम है जो बैक्टीरिया बेसिकली मार दिंदा है, लाइसोजाइम। तो जो पसीना आता है बेसिकली उदों भी यही एंजाइम काम आता है जोड़ा कि बैक्टीरिया वगैरह मार दिंदा है। अगला आ गया जी क्वेश्चन, कहता मलेरिया दे कहता परजीवियां अते अमीबा नूं कहता किस श्रेणी विच श्रेणीबद्ध किया जाता है, यानी जोड़ा पैरासाइट मलेरिया, पैरासाइट यानी मलेरिया वास्ते जोड़े रिस्पोंसिबल है, एंड जो अमीबा कहता उन्होंने किहड़ी कैटेगरी में पाया जाता, उन्होंने प्रोटोजोआ के पाया जाता। ये भी क्वेश्चन बहुत बार आता कि वह फंगस होंगी, बैक्टीरिया होंगे, वायरस होंगे, प्रोटोजोआ होंगे, पैरासाइट है इस करके वो प्रोटोजोआ, बेसिकली जिमें मलेरिया जो मॉस्कीटो करके होंगे है ना, मॉस्कीटो करके होंगे, मॉस्कीटो का मतलब मच्छर करके, मच्छरों के भी फीमेल करके होंगे, पता तुहानूं जोड़ा बंदा मच्छर होंगे बेसिकली वो तो लड़ते नहीं, इस करके कहते भी जी जनानी होंगी है ना, मतलब फीमेल है जी बेसिकली वो लड़ती है ज़्यादा, ठीक है। सो जी फीमेल मॉस्कीटो बेसिकली उही डंग मारती है भाई,
सो फीमेल मॉस्कीटो का जिहड़ा नाम हुंदा गा, उहदा नाम हुंदा जी एनोफिलीज, अनोफिलीज कह लो, अनोफिलीज राइट। फीमेल अनोफिलीज आ जिहड़ी मछली हुंदी है बेसिकली उही लड़दी है राइट। अमीबा तो चलो तुहानूं पता कि जिहड़ा यूनीसैलूलर आ विदाउट एनी सैक्सुअल जिहड़ी तुसीं कह सकदे एक्टिविटी आ उहदे तो ये आप ही एक तो दो हो जांदे राइट। सो प्रोटोजोआ इज द राइट आंसर। सो याद रखियो। अगला पौधों की कहता अंदरूनी बनतर दे अध्ययन नूं कहंदा की कहा जाता भाई, द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट, यानी प्लांट की जिहड़ी इंटरनल स्ट्रक्चर आ उसनूं आपां की कहने एनाटोमी। सो याद रख लियो, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एनाटोमी है ना। प्लांट की जिहड़ी स्ट्रक्चर नूं आपां एनाटोमी कहने आ, इहनूं फाइटोटोमी भी कहा जाता है। फाइटोटोमी, ये फाइटो कित्थों बनियागा, फोटोसिंथेसिस तो, प्लांट दे विच ही हुंदी है फोटोसिंथेसिस। सो इस करके फाइटोटोमी भी इसनूं कहा जाता, एनाटोमी भी कहा जाता। सो ये याद रख सकते हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस तो बाद आ गया अगला, कहता जी वट इज द फिनोमिना वेयर ट्यूमर सैल्स स्प्रैड थ्रू द सर्कुलेटरी सिस्टम टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, यानी वह वरतारा की है जिथे रसौली के सैल लहू के गेड़ प्रणाली राही शरीर के ਵੱਖ-ਵੱਖ हिस्सों में फैलते हैं। यानी कहने का मतलब की है कि जो ट्यूमर होंगे, ट्यूमर सैल्स होंगे वो जो अपनी जगह में छड़ देंगे बेसिकली आप उस प्रोसैस नूं की कहने। ये आम तौर पर कैंसर के देखा होगा कि जो आप काफ़ी सीरीयस जो कैंसर पेशेंट होंदा गा, असल में की होंदा कैंसर होंदा किवें, जिवें मान लो एक जगह पर सੱਟ लग गई, वो जो भी वो की कहते होंगे आ, जो भी जी सੱਟ लगी है बेसिकली जो कैंसर जो बनता गा बेसिकली, तो जो होस्ट होंगे, होस्ट तो एक जगह तो ही बनूगा ना। जो मान लो एक जगह तो इकट्ठा हो गया तो उत्थे वो बेसिकली एक तरह का कैंसर पैदा हो गया राइट। पर जो कैंसर जो आप कहने भी जो हथों बाहर हो गया, ਉਹਦਾ मतलब की होंगे कि जी ਉਹਦੀ होस्ट जगह जी जिथे वो पैदा होया वो अपनी जगह में छड्ड गया। जिवें बहुत सिंपल जी गल है, जेकर मैं कहा कि मैनू मान लो इत्थे मेरे दर्द है, तो इत्थे मान लो कोई मेरे मान लो चीज़ है कोई है ना, तो डॉक्टर इत्थे फड़ के उस चीज़ का इलाज कर दूगा भी इत्थे चीज़ सीगी वो कढ़ती मान लो चीज़ है ना। कैंसर हथों बाहर कदों हो जाता, क्योंकि जो कैंसर है वो अपने होस्ट जिथे वो पैदा होया उस जगह में छड्ड जाता, उस जगह में छड्ड जाता, इस करके उसनूं आपां कहने स्टेज 4 कैंसर राइट है। यानी वो अपनी जगह में छड्ड जाता, जगह में जो छड्ड जाता फिर वो लंग्स दे विच जा वड़े, दिमाग दे विच जा वड़े, किते भी जा सकता, इस करके बंदे की छेती मौत होने के चांस बन जाते हैं राइट। इस करके कहते भाई हुणे हथों बाहर होगी, यानी आपां नूं जे उहदा मान लो कोई दुश्मन है, दुश्मन नूं जाके फड़ के ढाउणा आपां, तो वह आपां नूं घर पता हो, घरे दुश्मन बैठा हो तो आप नाल दी उन्होंने फड़ के कुट मार सकते हैं, यानी इलाज कर सकते हैं। पर जो दुश्मन अपना घर छड्ड जे, बेघर हो जाए तो उस बाद लभना औखा हो जाता राइट। अभी वो किधर नूं गया, तो इस करके फिर स्टेज 4 कैंसर है। तो उस जो प्रोसैस आपने पूछा कि भी फिनोमेना की है, वो वर्तारा की है, कहता जिथे रसौली के सैल लहू के गेड़ प्रणाली राही कहता शरीर के ਵੱਖ-ਵੱਖ हिस्सों में फैल जाते हैं, यानी वो अपना होस्ट घर छड्ड के ਵੱਖ-ਵੱਖ हिस्सों फैल गए, उसनूं आपां कहने जी मैटास्टैसिस। मैटास्टैसिस आम तौर पर तुसीं सुनिया होगा, डॉक्टर कहते भाई ये मैटास्टैसिस स्टेज आ गई राइट, मैटास्टैसिस। तुसीं याद रखना डी इज द राइट आंसर। अगला आ गया, इन्हां विचों कहंदा किहड़ी चीज़ मनुखी चमड़ी नूं रंग देण लई जिम्मेवार है। हुण मनुखी चमड़ी ओबवियस गल है, जिहड़ियां सब्जियां पाणियां है ना, हुण ये तां मनुख है नहीं गे, तां तुसीं सब्जियां तरह तरह दी रंग अलग अलग रंग देखदे हो, जानवरां दे विच भी देखदे हो है ना, एनीमल जिन्ने भी हो गए, पर जिहड़ा मनुख है, मनुख दा रंग है जिहड़ा लगभग सेम है। हाँ गोरा काला कह सकदे हो, वो तां हो जाता क्योंकि जिहड़ा जिहदे करके वो हुंदा गा, वो कईयां दे विच ज़्यादा हुंदा वो काला हो जाता, जिहदे विच घट हुंदा भाई वो थोड़ा जिहा गोरा रह जाता, तो मैलानिन हुंदा राइट। सो मैलानिन करके बेसिकली अपना रंग है जिहड़ा स्किन है जिहड़ी है बेसिकली आपां नूं दिंदी है। ज़्यादा हो जाऊगा तो काला कर दोगे है ना, मैलानिन ज़्यादा हो गया तो काला हो गया, थोड़ा जिहा तो मीडियम हो जाता अपने वाले मीडियम इंडियन दे विच, ते जिहड़े अंग्रेज आ उन्हां दे विच बहुत घट हुंदा, इस करके राइट। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई। अगला आ गया, कहता जी इन्हां विचों किहड़ा कहंदा अशुद्ध खून नूं मनुखी दिल तो फेफड़ियां तक लैके जाता है। सो बेसिकली अपने फेफड़े आ राइट, इस तरीके दे नाल इन्हां दे विच अलग अलग तरीके दे नाल जिहड़ा ब्लड है भाई वो आउंदा गा। सो जिहड़ा ब्लड ये बाहर कढ के लैके जांदियां उन्हां नूं आपां कहने भाई पल्मोनरी आर्टरीज, ब्लड नहीं बेसिकली जिहड़ा इंप्योर ब्लड नूं बेसिकली ऑक्सीजनेट करदे ने, ऑक्सीजन दे नाल वो प्योर हो जाता, प्योर होकर फिर वो अपने लंग्स दे विच फिर आ जाता, यानी कि अपने शरीर दे विच फिर आ जाता राइट। सो जिहड़ियां आर्टरीज हुंदियां इन्हां दे विच इंप्योर ब्लड हुंदा, ते जिहड़ियां पल्मोनरी वेन्स हुंदियां है ना, उन्हां दे विच प्योर ब्लड हुंदा, यानी वेन्स आ जिहड़ियां प्योर ब्लड लैके आउंदियां ते इह इंप्योर ब्लड, यानी आह प्योर ब्लड लैके आउंदियां ते आह इंप्योर जिहड़ा प्योर नहीं हुंदा उस नूं लैके जांदियां, यानी इहदा जिहड़ा आंसर आ जाऊगा जी पल्मोनरी आर्टरीज आ जाऊगा, पल्मोनरी आर्टरीज राइट हो गया। पढ़िया इस तरीके दे नाल कदे बिना किसी चीज़ तो, बिना किसी बकवास तो, देखो किन्ने सोहणे तरीके दे नाल पढ़िया जांदा।
नहीं तो हा 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 ही फलाना तुमको आ कर लो वो कर लो फला तो करी जाता भाई ठीक है मेरा जी नहीं करता है जो कुछ करनो की करिए। सप कहता कच्छू कम्मे छिपकलियां ਅਤੇ मगरमच्छ जानवरों की किस श्रेणी में आते हैं। हुण सप कच्छू कम्मे छिपकलियां मगरमच्छ ऑब्वियस गल है ये अपने रैप्टाइल है सारे रैप्टाइल है बट कुछ रैप्टाइल ऐसे भी होंगे जिहड़े एम्फीबियन होंगे जिवें कि क्रोकोडाइल एम्फीबियन भी है ना। तो बेसिकली चलो ओवरऑल तो स्नेक्स है टर्टल है लिजर्ड है क्रोकोडाइल है सारे रैप्टाइल कैटेगरी के ही आते हैं। बट अजकल आप रैप्टाइल है जोड़े थोड़े बहुत वो क्रोकोडाइल वर्गे एम्फीबियन भी आ पानी के भी होंगे बाहर भी होंगे तो वह रैप्टाइल एंड एम्फीबियन दोनों ही ही आ जाते। सो रैप्टाइल इज द राइट आंसर। किहड़ी कहंदा उल्ली बाजरे विच हरी बीमारी का कारण बनती है। सो फिर एक क्वेश्चन ऐसा आ गया जिन्होंने तुसीं बस जस्ट याद करना है पेपर दे विच आ गया बहुत वधिया नहीं आया तो कोई चक्कर वाली गल नहीं बट उन्ना क टाइम याद रख लो जिन्ना टाइम में पेपर होंगे अपने। सो जिहड़ी बाजरे दे विच कहंदा एक उल्ली लग जाती है ना यानी उसनूं बेसिकली हरी बीमारी कहा जाता है राइट है। सो वो किहड़ी उल्ली हुंदी है भाई उहदा नाम हुंदा जी स्क्लेरोस्पोरा ग्रामीकोला राइट स्क्लेरो आ लिखे ही हुआ वैसे तो स्क्लेरोस्पोरा ते ग्रामीकोला। सो ये यानी जिहड़ा उल्ली का नाम है बेसिकली इहनूं तुसीं याद रख लो भाई फंगस का नाम है ठीक है। सो बस याद रख लो होर की है ठीक है। ग्रीन बीमारी यानी हरी बीमारी लग जाती है। अगला आ गया जी क्वेश्चन तुहाडे सामने कहता जी स्टैथोस्कोप का खोजी कौन है। स्टैथोस्कोप जिहड़ा कि आप जो जाने तो अपने डॉक्टर कन्ना दे ला के इत्थे है ना अपने दिल की धड़कन सुनने की कोशिश करता। सो वह इन्वेंटर कौन है भाई स्टैथोस्कोप का वह इन्वेंटर है जी इन्वेंटर लाइनिक। सो याद रख लो लाइनिक कदों खोज हुई है 1816 लाइनिक इज द राइट आंसर स्टैथोस्कोप ओके हो गया। अगला आ गया जी कहना दिमाग का कहना किहड़ा भाग है शरीर के तापमान को जिहड़ा नियंत्रित करता यानी ब्रेन के ऐसा किहड़ा पार्ट है जिहड़े अपने टैंपरेचर को कंट्रोल रखता जिहड़ा आपां कहने भी अपना 37 37.5 जिहड़ा हुंदा अपने शरीर का तापमान होंदा तो उसनूं कंट्रोल करता जो तापमान वध जाए तो उसनूं कूल कर दिंदा ठंडा कर दिंदा जो ज़्यादा ही ठंडा हो जाए तो उसनूं थोड़ा जिहा हीट प्रोवाइड कर दिंदा गर्म कर दिंदा। सो बट वो किहड़ा भाग है जिहड़ा शरीर के तापमान को नियंत्रित रखता भाई वो हुंदा जी हाइपोथैलेमस एंड जो एक्सीडेंट हो जाता तो बंदे की याददाश्त चली जाती है वो किहड़ा भाग हुंदा वो हुंदा जी सैरीब्रम बंदे नूं वहम पैण लग जाते मतलब भुल जाता बेसिकली एंड जो बंदे ते दारू पीती होवे तो बैलेंस तो बिगड़ जे है ना दारू पीती तो बाद बैलेंस बिगड़ जाता ना तो वो बैलेंस बिगड़ता तो इस करके सैरीब्रम तो सैरीब्रम हारमोन है जिहड़ा कि उत्थे दिमाग नूं घेरियां जिहां खांदा फिर मुड़ के है ना तो बेसिकली सो ब्रेन कंट्रोल बॉडी टैंपरेचर है जिहड़ा भाई वो हाइपोथैलेमस है। सो याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है टैंपरेचर हाइपोथैलेमस सैरीब्रम सारे याद रखने जरूरी है। अगला आ गया जी कहना मनुखी आंतड़ी में किहड़े बैक्टीरिया पाए जाते हैं राइट यानी जिहड़ा अपनी ह्यूमन इंटेस्टाइन है वो किहड़े बैक्टीरिया पाए जाते हैं बेसिकली होंदे तो यह हार्मलैस ही है थोड़े बहुत डाइजेशन के तो खैर इन्होंने की काम देना गा पर कदे कदे फूड पॉइजनिंग जरूर हो जाती है ना डाइजेशन करते तो इस करके ऑब्वियस गल है थोड़ा जिहा बैलेंस जिहा बनाई रखते हैं इन्होंने कहते ई कोलाई राइट एस्कैरिकिया कोलाई थोड़ी जी प्रोनाउंसिएशन इधर उधर हो सकती है इस करके मैं ई कोलाई बोलता एस्कैरिकिया कोलाई। सो अपने ह्यूमन इंटेस्टाइन के जिहड़े बैक्टीरिया मौजूद होंदे ने ई कोलाई ओके भाई समझ में बात आई। अगला आ गया अच्छा इस तो पहला मॉडर्न हिस्टरी इस तो पहला जनरल साइंस हो गया इस तो पहला मिसलेनियस क्वेश्चन हो गए मॉडर्न हिस्टरी के भी 2-3 लैक्चर मैं ला चुकिया। सो प्लेलिस्ट के जाना बस रिवीजन लैक्चर तो मैथ मूथ के लैक्चर भी शायद तुम देख लो थोड़े काम आउणगे मेरी गारंटी है बस देख लियो ध्यान दे नाल। मनुखी शरीर के कहता किहड़े भाग नूं रसायनिक फैक्टरी कहा जाता किडनी नूं कहा जाता पैनक्रियाज नूं कहा जाता लिवर नूं कहा जाता इंटेस्टाइन नूं कहा जाता यानी कैमिकल फैक्टरी किस नूं कहा जाता। हुण कैमिकल फैक्टरी का मतलब जिहड़ी चीज़ मर्जी पा दो उसने बंदे ने डाइजैसट कर ही देनी है यानी उसनूं तोड़ मरोड़ के उसनूं डाइजैसट करने की कोशिश करता गा यानी लिवर बहुत इंपॉर्टेंट राइट अपना ऑर्गन है। सो लिवर सब तो वड्डा ऑर्गन अपना लिवर। सो लिवर है जो फैटी एसिड्स नूं तोड़ के काम लैंदा। सो कैमिकल फैक्टरी इसनूं कहा जाता है। अगला कहता जी हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन दोवां नूं हीमोग्लोबिन के बन लई कहता किस चीज़ की लोड़ होंदी है आयरन की कमी हो जाए तो आप कह दें भाई भी हीमोग्लोबिन की कमी है इस करके इन्होंने आयरन की ही लोड़ होंदी है इस करके अनीमिया हो जाता राइट। सो हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन दोवां नूं कहंदा हीमोग्लोबिन के बन लई आयरन की लोड़ होंदी है। किन्ने टाइम का लैक्चर बन गया 50 मिनट का हो गया वेरी गुड टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करना बस टू द पॉइंट बोलो तो जाओ
ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਿਹੜਾ ਟਿਸ਼ੂ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਪੌਦੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਬਵੀਅਸ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜੜ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆ, ਜੜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੌਦਾ ਆ ਮੰਨ ਲਓ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਇਥੋਂ ਕਿਹੜਾ ਭਾਗ ਹੈ ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਫੂਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫੂਡ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਜਾਂਦਾ। ਪਾਣੀ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਾਈਲਮ, ਪਾਣੀ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ ਵਾਟਰ, ਹੈ ਨਾ, ਬਟ ਭੋਜਨ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਫਲੋਏਮ। ਸੋ ਫੂਡ ਤੋਂ ਬਣ ਗਿਆ ਫਲੋਏਮ, ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਣ ਗਿਆ ਜ਼ਾइलम। ਇੰਨਾ ਜ਼ਾਲਮ ਨਾ ਬਣ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਾ ਦਵੇਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਾइलम ਪਾਣੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਫਲੋਏਮ ਫੂਡ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਆ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਆ ਜੀ ਫਲੋਏਮ। ਓਕੇ, ਅਗਲਾ ਪੌਦੇ ਦਾ ਹਾਰਮੋਨ ਜੋ ਜੜਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਦ ਪਲਾਂਟ ਹਾਰਮੋਨ ਦੈਟ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਫॉर द ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਆਫ ਰੂਟਸ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੂਟਸ ਬਣਦੀਆਂ ਬੇਸਿਕਲੀ, ਹੈ ਨਾ, ਰੂਟਸ ਬਣਦੀਆਂ, ਉਸ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਹਾਰਮੋਨ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰਮੋਨ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਆਕਸੀਜਨ। ਆਕਸੀਜਨ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਤੇ ਰਿਪੀਟਡ ਕੁਐਸਚਨ, ਆਕਸੀਜਨ याद रख लो, ठीक है। प्लांट हार्मोन है जोड़ा कि वो काम आता है रूट्स वास्ते। किहड़ी चीज़ कहता खून के गेड़ में मदद करती है, यानी जोड़ा ब्लड का अपने सर्कुलेशन होंदा गा, है ना, ब्लड का जोड़ा सर्कुलेशन होंदा किहदे करके होंदा? लिम्फोसाइट्स करके। लिम्फोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स ट्रांसपोर्टर ऑफ द बॉडी भी कहा जाता भी, यानी कि दूजी थां ते सर्कुलेट होता रहिंदा लिम्फोसाइट। इस तो बाद आ गया जी कहता जो कि एम्फीबीयन के अध्ययन नाल संबंधित जूलॉजी की शाखा है उसनूं की कहा जाता है, यानी विच ब्रांच ऑफ जूलॉजी कंसर्न विद द स्टडी ऑफ एम्फीबीयंस। मैनूं लगदा मैं स्टार्टिंग च बोलिया सीगा एम्फीबीयन की स्टडी नूं कहा जाता जी हरपेटोलॉजी। सो याद रखना हरपेटोलॉजी एम्फीबीयन की स्टडी को कहा जाता है। ओहो हो क्वेश्चन हो गए खत्म। अच्छा आह मैं लिखता बैठा पर मैनूं हुण बनाउण वेले इन्ना ज़्यादा टाइम लग रहा क्योंकि मैनूं आया भी क्वेश्चन भी वधिया होण ते क्वेश्चन आ भी पेपरां दे विच जाण। सो कंप्लीट पॉलिटी आऊगी जरूर, मैं छोटे छोटे करके 100 करके लैक्चर बनाई जाना, कंबाइन करके ठोक दांगे पा दांगे, राइट। सो बट हजे क्वेश्चन बन रहे हैं, यानी पेपर तो पहला थोड़े 14 तरीक है ना पेपर, तो यह उदू पहला जरूर आ जाऊगी, यानी कल नूं आ जाए या परसों तक आ जाए, आ जरूर जाऊगी। पर उदों तक मैं इसे करके साइंस का लैक्चर पाता क्योंकि मैं जो आह पाया तो उदों बाद इसे नूं सारे जने डीकी जाते हैं कि सर जी पा दो पा दो पा दो, बट फिर वही गल है मैं पाऊँगा जरूर, थोड़ा जिहा टाइम होर वेट कर लो, राइट। सो कंप्लीट पॉलिटी 700 MCQ जदों अखीरला तीर यह वजया तो बस ऐ कह लो भी इदों इलावा पॉलिटी होर कितों करन दी लोड़ नहीं पैनी। हाँ फिर जो कितों होर आ गया तो फिर की कहना, ये मैं कोशिश करूँगा कि जिन्ने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए ने वो सारे के सारे इस लैक्चर के विच आपां खत्म कर लईए। सो मेरे हिसाब दे नाल तुहानूं भाई यह लैक्चर बहुत ही वधिया लग्या होगा। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। आपां होर नवीं वीडियोज़ नाल इसे तरीके दे नाल मिलदे रहांगे ते बहुत घट टाइम दे विच बहुत वड्डे वड्डे सैशन आपां लगाउंदे रहांगे। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। बाबा नानक मेहर करे, चढ़दी कला च रहो ते आपां होर नवीं वीडियोज़ नाल मिलदे रहांगे। बाकी टैलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करो, एप्लीकेशन जरूर इंस्टॉल करो, बहुत कुछ पिया, सारे लिंक डिस्क्रिप्शन दे विच मौजूद ने। बाय बाय, टेक केयर।